Hello all. So let's start today's topic with wave nature of EMR. EMR, electromagnetic radiation. So this topic is quite definitely something new for you. And wave nature and second one इसके बाद जो आएगा that is particle nature of electromagnetic radiation. Wave nature सबसे पहले it was established by James Maxwell. James Maxwell, right? In 1870, he has established it. James Maxwell. And what he has established, and he has given explanation that the interaction between the charged bodies, the interaction between the charged bodies, interaction between charged bodies and the behavior of electric and magnetic fields on मैक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक यानी बिगर लेवल पे, राइट. उसने ये इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट ही हैज सजेस्टेड दैट whenever an electrical charged particles move under acceleration, the electrical and magnetic fields are produced and transmitted, right? What he suggested that when electrically charged particles move अंडर एक्सेलरेशन, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है. जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इफ एनी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स फाउंड, डेफिनेटली इट जनरेट सम काइंड ऑफ एनर्जी, रेडिएशन जनरेट होता है. सो इन दिस केस व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड magnetic fields are generated and transmitted also. ट्रांसमिट भी होते हैं. सो ये बात बोली जेम्स मैक्सवेल ने, राइट. इन अर्लियर डेज वी नो दैट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ऐसा माना जाता था पहले. द लाइट वॉज सपोज टू बी मेड अप ऑफ particles. Light was supposed to be made of particles, जिसको दूसरा नाम था corpuscles. Now in earlier days in 19th century, when wave nature of light was established, at that time this theory was believed that the light was supposed to be made up of particles. And Maxwell again he has revealed that light waves are associated with the oscillating electric and magnetic character, right? मैक्सवेल ने फिर से बोला, राइट, कि लाइट वेव्स आर associated
अभी यहाँ पे वर्ड आया ऑसिलेटिंग, यानी जब मूव करता है वो, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट। तो ये दो जो चीज़ है इसके बारे में उसने बात की। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर इज कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. So some properties has to be followed. So he has given some properties. So let us discuss, right? Properties. Okay. What kind of properties? First question. So oscillating electric and magnetic fields are produced. First, the oscillating electric and magnetic fields are produced by oscillating charged particles, and they are perpendicular to each other, and these both electric as well as magnetic fields, they are perpendicular to the direction of propagation of wave also. So let us draw one figure, right? We know that this is z-axis, okay. This particular, right, is x, और यहाँ से पास होगा that is y-axis. ये थोड़ा नीचे आएगा पर स्ट्रेट हो गया. So now पर्टिकुलरली यहाँ से जब पास होता है, मैं तो वेव ड्रॉ करते हैं हम. ये एक वेव ड्रॉ किया मैंने, ठीक है. एंड दूसरा वेव वाई एक्सिस पे से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो जाता है लाइक दिस, यहाँ से होते हुए समझ रहे हो, राइट. और तीसरा ये हो गया हमारा, राइट, एक्स एक्सिस है थोड़ा, दैट इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. सो डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है तो समझ हो गया कि 90 डिग्री है. ये जो है जेड एक्सिस के ऊपर से रेड कलर का, अरे सॉरी ब्लू कलर का है ये, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट. ये ब्लू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. और ये जो ब्राउन कलर है यहाँ पे, दैट इज अवर मैग्नेटिक फील्ड. So these two, electric and magnetic field, are perpendicular to each other, as well it is perpendicular to direction of propagation also. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी. क्या बोल रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी? द oscillating electric and magnetic fields, oscillating electric and magnetic fields are produced by oscillating charged bodies, or charged particles are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि they are perpendicular 90 डिग्री पे, राइट.
perpendicular to each other, and these both are perpendicular to direction of propagation, to the direction of propagation. तो ये क्या हुआ, राइट, लाइक दिस, ये हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, थंब रूल जैसे होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. तो ये जो हो गया दैट इज नोन एज, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी की मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज बॉडीज, पार्टिकल्स जब मूव करते तब प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग, they are perpendicular to each other, and these two rays are also perpendicular to the direction of propagation. Second, that is sound और water wave की तरह, unlike sound waves or water waves, EMR waves, electromagnetic radiation or electromagnetic waves, right, they do not require any medium to travel. They do not require any medium to travel, so they can travel in vacuum also. They can travel in vacuum also. तो ये जो बात चल रही है इसके अंदर, these fields are transmitted in the form of waves, they are called electromagnetic waves और electromagnetic radiation भी हम इसको बोल सकते हैं. तीसरी बात जो की उसने, जिसकी वजह से आज दुनिया चल रही है, तो तीसरी बात उसने क्या की कि दैट्स देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत सारे हैं, राइट. ऑन व्हाट बेसिस दे आर टाइप्स है, कि ऑन किस तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स है. सो मैनी टाइप्स ऑफ EMR विच डिफर इन वेवलेंथ ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, विच डिफर इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग है. कैसे? उसकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ अलग है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक पूरा रेंज रहता है, उस हिसाब से अलग अलग रहता है. उसमें फर्स्ट जो रहता है दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन. रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन जो रहता है अराउंड 10⁻⁶ हर्ट्स. 10⁻⁶ हर्ट्स जो डेफिनेटली ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जो यूज होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं. दूसरा माइक्रोवेव. माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज अराउंड 10⁻10 हर्ट्स. भी माइक्रोवेव है तो किसके लिए यूज होगा? यहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही है. दैट इज यूज फॉर रडार. जो हम बात कर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर बहुत सारे, राइट, दैट इज यूज फॉर रडार. थर्ड वन जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, दैट इज इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड रीजन. इंफ्रारेड है दैट इज ऑल्सो
अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज है. 10⁻13 हर्ट्ज है. इंफ्रारेड है तो इट इज यूज फॉर हीटिंग पर्पस. ओके, ये आ गया फर्स्ट. रेडियो फ्रीक्वेंसी 10⁻6 हर्ट्ज फॉर ब्रॉडकास्टिंग. माइक्रो है अराउंड 10⁻, ये अराउंड है, एग्जैक्टली नहीं है, सभी अराउंड ही है. रडार पर्पस के लिए रडार में यूज होता है. और 10⁻13 है और जो इंफ्रारेड की है वो हीटिंग में यूज होता है. यूवी रीजन अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो रहती है अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज, राइट, जो सन के रेडिएशन में से निकलती है. सही है, यूवी फ्रीक्वेंसी. और हम जो देखते हैं विजिबल लाइट फ्रीक्वेंसी, हमको जो जितनी चीज दिखाई देती है, विजिबल लाइट फ्रीक्वेंसी दैट इज अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज, right? Our eyes can see that particular region, that particular frequency, that is visible light frequency. समझ में आए? तो ये तो बहुत इजी था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए जो रीजन है वो 10⁻6 हर्ट्ज है, माइक्रोवेव के लिए 10⁻10, इंफ्रारेड के लिए 13, यूवी के लिए 10⁻16 एंड विजिबल लाइट अराउंड 10⁻15. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज different kinds of units are used to represent electromagnetic radiation. Different kind of units like frequency, that is denoted by V, and second one दूसरी एक unit that is known as wavelength, which is denoted by lambda, right? ये बोला जाता है लैम्बडा. यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, राइट, लैम्बडा. सो फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा, दीज टू आर द बेसिक units which are represent the electromagnetic radiation. Okay, now let us start. What is the SI unit of frequency? Unit of फ्रीक्वेंसी का यूनिट कौन सा है? तो उसके लिए जो यूज होता है दैट इज हर्ट्ज, जो हमने अभी लिखा हर्ट्ज. और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं सेकेंड इनवर्स, एस इनवर्स. ये दोनों में से कोई भी एक यूनिट चलेगा. सो हर्ट्ज और सेकंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स. दूसरा, अभी हमने वर्ड सुना फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो द नंबर ऑफ वेव्स दैट passes a given point in 1 second. The number of waves passes in a given point in 1 second. एक सेकंड में एक पॉइंट में से जितनी बार वेव्स पास होते हैं दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ओके, तो नेक्स्ट आया एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? तो वो तो सिंपल बेचारा मीटर में ही हम उसको मेजर करते हैं. इन वैक्यूम, क्योंकि ईएमआर तो वैक्यूम में से भी पास होता है. सो इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट. इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ ईएमआर, यानी आगे हमने पढ़ा ना कि विजिबल जो है यूवी है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है,
ऑल दीज काइंड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये सब है जब वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ EMR दे ट्रैवल विथ speed of light, that is represented by small c. स्पीड ऑफ लाइट. अभी ये वैल्यू है हमको याद रखनी है. c की वैल्यू जो है दैट इज 3, पेन बदलना पड़ेगा. c is equal to 3.0 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ लाइट. c इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट. राइट. Now the interrelation between frequency V, wavelength lambda and speed of light c. इन तीनों का रिलेशन एक इक्वेशन से डिनोट होता है, जो इक्वेशन है c इज इक्वल टू वी लैम्बडा. ये याद रखना है, ये आगे चल के बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो ये है c इज इक्वल टू वी लैम्बडा. इसके बाद एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज वेव नंबर, जो v बार से डिनोट किया जाता है. वेव नंबर. तो वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स per unit length, that is known as wave number. It is reciprocal of wavelength. wavelength का रेसिप्रोकल है. तो इसका यूनिट क्या होगा? वेवलेंथ का यूनिट जो है हमने देखा कि वो मीटर है. राइट. तो इसका यूनिट क्या होगा वेव नंबर का? मीटर इनवर्स. ठीक है. तो ये हो गया हमारा छोटा सा एक टॉपिक आज का. चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट. वेव नेचर ऑफ EMR किसने बोला? जेम्स मैक्सवेल में. इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल. What he has suggested that when the electrically charged particles move under acceleration, electric field and magnetic field are generated and transmitted. Light waves जो है they are associated with the electrical and magnetic character. यहाँ पे देखो electric field and magnetic field they are perpendicular to each other and both the particular fields are also perpendicular to the direction of propagation like this. Right? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. राइट. EMR है वो वैक्यूम में भी ट्रैक कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, सो दैट इज ऑल्सो देयर. ओके. एंड देन बात करते हैं मैनी टाइप्स ऑफ EMR. जैसे हमने पढ़ा रेडियो फ्रीक्वेंसी की रीजन, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, UV एंड विजिबल. राइट. इसकी दो पर्टिकुलर यूनिट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ V एंड लैम्बडा जिसकी बात चल रही है. इसमें फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट है हर्ट्स और सेकंड इनवर्स. वेवलेंथ का है मीटर. वेव नंबर का है मीटर इनवर्स. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. स्पीड ऑफ लाइट किसको बोला जाता है? कि वैक्यूम है
ऑल टाइप्स ऑफ ईएमआर, कोई भी जो टाइम ईएमआर है वो लाइट की स्पीड से ही मूव करता है, ट्रैवल करता है, जो c इज इक्वल टू 3 × 0 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट का इंटर रिलेशन जो है दैट इज c इज इक्वल टू v इंटू लैम्बडा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद कल हमारा जो सेशन होगा उसके अंदर हम एक छोटा सा पार्टिकल नेचर का भी टॉपिक करेंगे और एक इसके ऊपर के बेस के ऊपर से थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।